آج کا یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں۔ کیا واقعی محرم الحرام کی بے ادبی کرنے والے پر اللہ کا عذاب دنیا ہی میں آ سکتا ہے؟ کیا ایک لمحے کی گستاخی انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عبرتناک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی لڑکی کی داستان جس نے محرم الحرام کی حرمت کا مذاق اڑایا، بزرگوں کی نصیحت کو ٹھکرا دیا اور پھر اس کے ساتھ ایسا خوفناک انجام پیش آیا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے کیونکہ اس میں ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منہا مرزا لاڈو بلاگ۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور مقدس مہینہ ہے جو اپنے دامن میں نہ صرف اسلامی سال کے آغاز نوید لاتا ہے بلکہ یہ اپنے اندر تاریخی انسان کے ایسے لازوال جگر سوز اور سبق آموز واقعات سموئے ہوئے ہیں جنہیں قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مہینہ جہاں نواسے رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جانثار ساتھیوں کے عظیم الشان قربانیوں کے صبر و رضا اور باطل کے سامنے سر نہ نگو کرنے کی داستان عظمیت کا ایمن ہے، وہاں یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ہی قابل احترام، لائق تعظیم اور مقدس ترین مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ان میں محرم الحرام کو ایک خاص اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اس مہینے میں جنگ اور جدل، گناہ اور نافرمانیوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان تاریخ میں ایسے بدبخت اور نادان لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف ان مقدس ایام کی حرمت کو پامال کیا بلکہ اللہ کے احکامات اور دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا کر اپنے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب الہی کو دعوت دی۔ عبرتناک واقعات بیان کرنے جا رہی ہوں جو ایک ایسی لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جس نے محرم الحرام کے مہینے کی بے ادبی کی، دین کا مذاق اڑایا، پھر اس پر اللہ رب العزت کا ایسا خوفناک اور عبرتناک عذاب نازل ہوا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک تازیانہ اور سبق بن گئی۔ محرم الحرام کی بے ادبی اور عذاب الہی کا عبرتناک واقعہ۔ پس منظر غفلت اور گمراہی کا راستہ ہمارے معاشرے میں جہاں دین اسلام سے گہری محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہیں بعض گھرانے ایسے بھی ہیں جو دنیاوی آسائشوں، مال و دولت کی فرمانی اور فیشن پرستی میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں حلال اور حرام کے مقدس وغیرہ مقدس کے درمیان کا فرق بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسا ہی ایک امیر کبیر گھرانہ شہر کے ایک ہوش اور مہنگے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اس گھر کے سربراہ جناب امجد صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا زیادہ تر وقت کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک سفر میں گزرتا تھا۔ ان کی اہلیہ سوریا بیگم دنیاوی دکھاوے، کٹی پارٹیوں اور فیشن شوز کی شوقین خاتون تھی۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام آسمہ تھا۔ آسمہ بچپنے سے انتہائی ضدی، خود سر اور مغرور طبیعت کی مالکی تھی۔ حسن و جمال میں وہ اپنی مثال اپنی آپ، وہ یہی حسن اور اس کے لیے غرور تکبر کا باعث بن چکا تھا۔ امجد صاحب کی بے پناہ دولت نے آسمہ کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے مجاز میں عاجزی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ مہنگے ترین برانڈز کے کپڑے پہنتی، جدید ترین گاڑیوں میں گھومتی اور رات دیر تک اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ گانے اور فیشن کی محفلوں سجاتی۔ سوریا بیگم نے کبھی آسمہ کو دین کی بنیادی تعلیمات، نماز، روزے یا اسلامی اخلاقیات کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آسمہ کے نزدیک دین اسلام کی باتیں صرف پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے کہانیاں تھی جن کا موجودہ دریر دور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اکثر نماز پڑھنے والی خواتین، پردہ کرنے والی لڑکیوں اور دین مجالس کے مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اسی گھر میں ایک ضعیف العمر ملازمہ بھی کام کرتے تھے جنہیں سب اماں سکینہ کہتے تھے۔ اماں سکینہ ایک نہایت ہی نیک، نماز روزے کی پابند اور صابر خاتون۔ وہ اکثر آسمہ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، بیٹی یہ حسن، یہ دولت سب فانی ہے، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، نماز پڑھا کرو، گناہوں سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز چلے اور پھر سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن آسمہ ہمیشہ اماں سکینہ کی باتوں کو اڑاتی، کبھی انہیں دقیانوسی کہتی تو کبھی کہتی اماں آپ اپنی نمازیں اپنے پاس رکھیں، مجھے میری زندگی جینے دیں، مجھے ان بورنگ چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ محرم الحرام کا آغاز اس شہر کا ماحول وقت گزرتا گیا اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی پورے شہر کا ماحول بدل گیا۔ مساجد میں ذکر و اذکار کی محفلیں شروع ہو گئی، اماں بارگاہوں اور گھروں میں مجالس عزا کا اہتمام ہونے لگا اور لوگ نواسائے رسول کی قربانیوں کو یاد کر کے غمگین اور سنجیدہ ہو گئے۔ ہر طرف ایک خاموشی، وقار، سوگ کا سما تھا۔ عام طور پر اس مہینے میں لوگ شادیاں، خوشی کی بڑی تقاریب، ناچ گانے اور تفریحی محفلیں منعقد کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ آل رسول کے خون سے رنگین ہے۔ اس کے ایک خاص حرمت ہے
अम्मा सकीना ने भी अपने कमरे में एक छोटा सा मुसल्ला बिछा लिया था जहाँ वो दिन रात तिलावत कुरान करती। मुहर्रम की मुनासिबत से वो दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करती, लेकिन आसमा के कमरे का माहौल उसके बिल्कुल बरअक्स था। उसके कमरे से अब भी तेज मौसीकी, पाप गानों और हंसने मुस्कुराने की आवाजें आती रहती। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बाहर दुनिया किस गम और एहतराम में डूबी हुई है। 9वीं मुहर्रम की रात नाफरमानी की इंतहा दिन गुजर गए। यहाँ तक कि मुहर्रम की 9वीं तारीख आ गई और ये वो रात है जिसे तारीख इस्लाम में इंतहाई संगीन प्यास, भूख और आले मोहम्मद पर ढाए जाने वाले मुजालिम की यादगार रात कहा जाता है। उस रात दुनिया भर के मुसलमान ज़ारो कतार रोते हैं, इबादत करते हैं और नवाज़े रसूल का गम मनाते हैं। आसमा ने ऐसी औरत अपने घर पर एक बहुत बड़ी बर्थडे प्लस डांस पार्टी का प्लान बनाया। दरअसल उसकी एक खास सहेली की सालगिरह थी और आसमा ने जिद की कि वो पार्टी उसके घर पर ही हो। जब उसने अपनी वालिदा सुरैया बेगम से उसका जिक्र किया तो सुरैया बेगम ने भी, जो कि दुनियादारी में गर्क थी, बखुशी इजाजत दे दी। शाम के वक्त जब पार्टी की तैयारियां शुरू हुई, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम घर के हाल में लगाए जाने लगे, रंग बिरंगी लाइट से नसीब हुई तो अम्मा सकीना का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो तड़प उठी कि या अल्लाह, इस पाक महीने में और वो भी आशूरा की रात को मेरे मालिक के घर में घर वालों की याद के दिन उस घर में नाच गाने का महफिल सजेगी। अम्मा सकीना हिम्मत के आसमा के कमरे में गई जहाँ आसमा के इंतहाई चमकदार मुख्तसर और मगरबी लिबास पहनकर शीशे के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। अम्मा सकीना ने कांपते हुए हाथों से आसमा का हाथ पकड़ा और इंतहाई लजाजत से कहा, आसमा बेटी, खुदा के लिए मेरे बात मान लो, आज 9वीं मुहर्रम की रात है। आज की रात तो वो रात है जो करबला का मैदान में रसूल पाक के बच्चों पर पानी बंद था, जब खेमों में कोहराम मचा था। आज की रात नाच गाना मत बेटी, अल्लाह का खौफ करो। अगर पार्टी करनी है तो मुहर्रम के बाद कर लेना, ये आले रसूल का महीना है, उनकी बेअदबी हुर्मत मत करो, अल्लाह का गजब बहुत सख्त है। आसमा ने गुस्से से अपना हाथ झटका और उसके आंखों में तकब्बुर की चमक थी। उसने गुर्राते हुए कहा, अम्मा सकीना, तुम अपने हद में रहो करो, तुम सिर्फ एक मुलाजमा हो, मेरी माँ या मेरी उस्ताद नहीं। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या कब करना है। मुझे तुम्हारे इन पुराने किस्सों और करबलों की कहानियों से कोई गर्ज नहीं। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद हुए 1400 साल गुजर चुके हैं। अब क्या हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे कमरे में पैर मत रख। अम्मा सकीना आसमा के मुंह से गुस्ताखाना बेअदब कलमात सुनकर कांप उठी और उनका पूरा बदन लरजने लगा। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उनके मुंह में सिर्फ ये निकला कि या अल्लाह, इस नादान लड़की को माफ कर दे, ये नहीं जानती ये कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रही है। पार्टी का आगाज और गुस्ताखी का उरूज के 9 बजे आसमा के दोस्त और सहेलियां, लड़के और लड़कियां जदीद फैशन के लिबास पहने इस घर में के पहुंचना शुरू हो गई। देखते ही देखते हाल रूम नौजवानों से भर गया। तेज म्यूजिक ऑन कर दिया गया जिससे धमक से पूरा मोहल्ला लरज उठा। शराब और दीगर ममनुआ मशरूबात के दौर चलने लगे। बाहर गली में लोग मजालिस से लूट रहे थे। कई लोगों ने जब इसके घर से तेज मौसीकी और हंसने की आवाजें सुनी तो उन्होंने अफसोस से अपने सर हटाने लगे। कुछ बुजुर्गों ने अमजद साहब के घर के चौकीदार से भी कहा कि भाई, इन्हें कहो कि आज की रात तो कम अज कम इस गुनाह से बाज रहे। पूरा मोहल्ला सोगवार है और यहाँ नाच गाना हो रहा है, लेकिन अंदर आसमा और इसके दोस्त दुनिया माफिया सब बेखबर नाचने में मगन थे। आसमा हाल के ऐन वस्त में खड़ी शराब का गिलास हाथ में लिए तेज तरीन गानों पर रक्स कर रही थी। उसका गुरूर अपने उरूज पर था। वो अपनी सहेलियों से कह रही थी, देखो बाहर के लोग कितने बेवकूफ हैं जो इस खूबसूरत रात को रो कर गुजार रहे हैं। जिंदगी तो एंजॉय करने का नाम है। अज़ाब इलाही का अचानक नुज़ूल ठीक रात के 12 बजे जब पार्टी अपने उरूज पर थी, आसमा एक मेज पर खड़ी होकर नाच रही थी। अचानक मौसम ने एक अजीब और हवलनाक करवट ली कि बाहर आसमान पर बगैर किसी पेशन गोई के ऐसे काले स्याह बादल छा गए जैसे दिन के वक्त सूरज को ग्रहण लग गया हो। तेज और गर्म आंधी चलने लगी जिसकी आवाज किसी गजबनाक शेर की दहाड़ जैसी थी। अचानक एक ऐसी हवलनाक और कड़कदार बिजली चमकी कि पूरा शहर रोशन हो गया और उसके साथ ही ऐसा धमाका हुआ जिसे जमीन सदरदह रह गई। अमजद साहब के घर का तमाम लाइट्स, जनरेटर और म्यूजिक सिस्टम एक जोरदार झटके के साथ जलकर राख हो गया। पूरा हाल अंधेरे में डूब गया। नौजवान लड़के और लड़कियां खौफ के मारे चीखने लगे, लेकिन असल हवलनाक मंजर तो अभी शुरू होना था। जैसे ही अंधेरा हुआ, आसमा के जिस्म से एक जोरदार चीख निकली। वो चीख कोई आम इंसानी चीख नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर को जिंदा जलाया जा रहा हो। तमाम लोग अपने मोबाइल फोन्स की टार्चें ऑन करके आसमा की तरफ देखने लगे। जब टॉर्च की रोशनी आसमा पर पड़ी तो वहाँ मौजूद हर शख्स का खून जम गया। कई लड़कियां खौफ के मारे बेहोश हो गईं और लड़के पीछे हट गए। आसमा की हालत जार। आसमा जो चंद लम्हे पहले अपने हुस्न और लिबास पर नाज थी, अब फर्श पर तड़प रही थी। उसके रेशमी और कीमती लिबास में बगैर किसी जाहिरी आग के एक पोशीदा नादीदा आग भड़क उठी। उसके जिस्म की जिल्द पिघल रही थी और उसमें से पिघले हुए प्लास्टिक की तरह धुआं निकल रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका कपड़ा
नहीं जल रहा था बल्कि सिर्फ उसका गोश्त और जल रही थी। उसका वो चेहरा जिस पर वो हजारों रुपया का मेकअप करके मगरूर बनी हुई थी, सेकंडों के अंदर काला स्याह हो गया। उसकी आंखें उबल कर बाहर को निकल आई और उसका मुंह एक तरफ को टेढ़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ने उसका चेहरा मस्क कर दिया हो। वो कुछ बोलना चाहती थी, अपनी माँ को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी वो जुबान जिससे उसने आले रसूल मुहर्रम का मजाक उड़ाया था वो मुंह से बाहर निकल आए, बिल्कुल काली सख्त हो गई। उसके मुंह से सिर्फ झाग और खून निकल रहा था। वो सिर्फ गे गे की हवलनाक आवाजें निकाल पा रही थी। उसके दोस्त और सहेलियां ये हवलनाक माविरा अकल मंजर देखकर अपने गाड़ियों और सामान वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग खड़ी हुई। सारा हाल खाली हो गया, सिर्फ सुरैया बेगम चौकीदार और अम्मा सकीना वहाँ रह गई। अस्पताल का मंजर डॉक्टरों की हैरत। सुरैया बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर पागलों की तरह चीखने लगी। अमजद साहब को फौरी तौर पर इत्तला दी गई। आसमा के शहर को सबसे बड़े और महंगे बिजनेस हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल के शोबे हादसात में जब डॉक्टरों की टीम ने आसमा को देखा तो सब हैरत और खौफ के दलदल में डूब गए। मेडिकल साइंस के पास आसमा की हालत का कोई जवाब न था। एक्सरे और रिपोर्ट्स डॉक्टरों ने जब उसका मुआयना किया तो मालूम हुआ कि उसके जिस्म का दर्जा हरारत उस हद तक बढ़ चुका था कि आम थर्मामीटर से उसे नापने से कासिर थे। अंदरूनी तौर पर उसके आजाद जल रहे थे, लेकिन बाहर कोई आग का निशान नहीं था। और इसरार बदबू आसमा के जिस्म से कैसी शदीद और हवलनाक सरांद और बदबू आ रही थी कि अस्पताल के अमले के लिए उसके कमरे में खड़ा होना नामुमकिन हो गया। इत्र और स्प्रे भी उस बदबू को कम करने में नाकाम रहे। डॉक्टरों का एतराफ है, शहर के सबसे सीनियर डॉक्टर ने अमजद साहब को सुरैया बेगम को बुलाया। साफ अल्फाज में कहा, जनाब ये कोई तबी या मेडिकल किस केस नहीं है। इस लड़की पर कोई जाहिरी आग नहीं लगी, लेकिन इसका गोश्त अंदर से पिघल रहा है। उसकी जुबान और चेहरे जिस तरह मस्क हुए हैं वो किसी बीमारी का नतीजा नहीं हो सकते। ये कोई इलाही अजाब या कोई ऐसी ताकत है जो हमारी समझ से बाहर है। आप दवा के बजाय दुआ का सहारा लें। तौबा का दरवाजा और इबरत का निशाना। आसमा को अस्पताल से घर वापस ले आया गया क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ऐसे घरों के एक अलग कमरे में रखा गया जहाँ कोई भी बदबू और उसकी हवलनाक शक्ल की वजह से जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो लड़की जो कभी ऐश और इशरत से मलका थी अब वो एक बिस्तर पर लाचार, बेबस और तड़पती हुई पड़ी थी। उसके जिस्म पर कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे और वो ना तो मर सकती थी और ना ही जी सकती थी। वो दिन रात अपनी उबलती हुई आंखों से आसमान की तरफ देखती और उसकी आंखों से खून आलूदा आंसू बहते रहते। इशारों से माफी मांगती, लेकिन उसकी जुबान लाख हो चुकी थी। एक दिन अम्मा सकीना उसके कमरे में दाखिल हुई। आसमा जैसे ही अम्मा सकीना को देखा वो अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ी और घसीटती हुई अम्मा सकीना के कदमों में आ गिरी। उसने अपने मस्क शुदा चेहरे को अम्मा सकीना के पैरों पर रख दिया और बिलक बिलक कर बगैर आवाज के रोने लगी। उसके इशारे कह रहे थे कि अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया, मैंने मुहर्रम की बेअदबी की, मुझे बचा लो। अम्मा सकीना का दिल पिघल गया। उन्होंने आसमा के सर पर हाथ रखा, रोते हुए कहा, आसमा बेटी, मैं तो एक अदना इंसान हूँ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने जिस पाक हस्ती के महीने की बेअदबी की, तुमने जिस दीन का मजाक उड़ाया, माफी उस अल्लाह से मांगो, वो गफूरुर रहीम है, लेकिन जब उसकी पकड़ आती है तो वो बहुत सख्त होती है। अम्मा सकीना ने उसी वक्त जाए नमाज बिछाई और रो रो कर आसमा के हक में दुआ करने लगी। या अल्लाह, ये नादान थी, ये भटक गई थी, उसकी तौबा कबूल कर ले, उसके अजाब में तखफीफ फरमा। कहा जाता है कि 9वें मुहर्रम के बाद जब 10वीं मुहर्रम आशुरा का दिन गुजरा तो रात के वक्त आसमा ने इंतहाई तकलीफ और तड़प के बाद दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका चेहरा उसी तरह काला और मस्क रहा, जिससे ये वाज़ेह था कि अल्लाह ताला ने उससे दुनिया के लोगों के लिए एक जिंदा इबरत बना दिया था। इस वाक़ये को हम पहलू और गहराई से हासिल करने वाले असबाक वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये एक मौजूदा दौर के इन तमाम नौजवानों और अफराद के लिए एक ताज़ियाना जो दुनिया के रंगीनों के गम होकर अपने दीन और अपने माशरे और अपने हदूद को भूल चुके हैं। इस वाक़ये से हमें सबक सीखना चाहिए। रमजानुल मुबारक, रजब और जिलहिज्जा जैसे महीने अल्लाह की निशानियां और हुर्मत वाले दिन हैं। इन दिनों में गुनाह करना आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा सख्त गुनाह और सजा का बास बनता है। आसमा ने उन मशायरे का मजाक उड़ाकर बराह रास्त अल्लाह के गजब को दावत दी। तकब्बुर और हुस्न और दौलत का जवाल इंसान के पास जो कुछ भी है, ख्वाह वो हुस्न हो या दौलत हो या जवानी हो, सब अल्लाह की अमानत है। इंसान को इन चीजों पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। आसमा अपने हुस्न और दौलत पर नाज था, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो न उसकी दौलत काम आई न उसका हुस्न उसे बचा सका। चंद सेकंडों में वो सब कुछ खाक में मिल गया। बुजुर्गों और दीनदारों की नसीहत को हल्का न लेना। माशरे में जब भी कोई नेक इंसान, चाहे वो गरीब हो क्यों ना हो, जैसे अम्मा सकीना थी, आपको दीन की बात बताएं या गुनाह से रोकें तो उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। दीनदार लोगों का मजाक उड़ाना या उन्हें दकियानूसी कहना इंसान के बर्बादी की तरफ ले जाता है। अल्लाह की मोहलत
मोहलत से धोखा न खा लेना। अल्लाह ताला इंसान को गुनाह करने पर फौरी तौर पर नहीं पकड़ता और वो मोहलत देता है, रस्सी दराज करता है ताकि इंसान संभल जाए, तौबा कर ले। लेकिन जब इंसान उस मोहलत को अपनी ताकत समझ बैठता है और गुनाह की इंतहा कर देता है तो फिर अल्लाह की लाठी चलती है जिसकी कोई आवाज नहीं होती और न ही उससे कोई बचा सकता है। आले रसूल और शहदाए करबला का एहतराम मुहर्रमुल हराम का महीना, नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके पास खानवादे की कुर्बानियों के खानदानों की कुर्बानियों का महीना है। इस महीने में खुशियां मनाना, नाच गाने की महफिलें सजाना, ये गम हुसैन का मजाक उड़ाना किसी भी कलमा का मुसलमान को जेब नहीं देता। ये महीना सादगी, इबादत, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करने का महीना है। अल्लाह का अज़ाब, ये बात भी समझना जरूरी है कि अल्लाह का अजाब हमेशा जाहिरी शक्ल बदलने या जिस्म जलने की सूरत में ही नहीं आता। बाज़ औकात अल्लाह का अजाब उससे भी ज्यादा हवलनाक होता है जो कि रूहानी अजाब कहलाता है, दिल का मुर्दा हो जाता है। जब इंसान मुसलसल गुनाह करता है, दीन का मजाक उड़ाता है तो उसके दिल पर स्याह धब्बा लग जाता है और उससे तौबा की तौफीक भी छीन ले जाती है। सबसे बड़ा अजाब ये कि इंसान गुनाह को गुनाह न समझे और उसे गफलत को हालत में उसे मौत आ जाए और तौबा के बगैर दुनिया से रुखसत हो जाए। आसमा का वाकया हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। हमें चाहिए कि हम अपने गिरेबानों में झांके और मुहर्रमुल हराम जैसे मुकद्दस महीनों का दिलो जान से एहतराम करें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम के शायर का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की दुनियावी आखिरवी अज़ाब से महफूज रखे, आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए एक सदका जारिया बन जाए। मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।